Students, today we will continue the same chapter, chapter 2, demographic structure of Indian society. In our last lecture, we have discussed the meaning of demography, common indicators like birth rate, death rate, fertility rate, etc., and the Malthusian theory of population growth and its positive and negative aspects. Today, we are studying the theory of demographic transition. What is demographic transition? Demography means population and transition means moving one phase to another. So the meaning of demographic transition is when the population has moved from one phase to another. And this theory was propounded by Warren Thompson in 1929. He was an American. In this theory, there are 3 stages of demographic transition. Many sociologists expanded the stages of this theory like 4 stages or 5 stages, but now here we are discussing only 3 stages. Stage 1, stage 2 and stage 3, and try to correlate it with the Indian demographic structure. Population determinate through 3 factors: birth rate, death rate or migration. But migration is not included in this theory, so we will not talk about the migration. Theory of transition suggested that the population of a country goes through 3 stages. In this stage, the country is backward and is characterized by high birth and death rate, with the result that the growth rate of population is low. So in this stage, the country is backward and the society is primitive, and the birth rate is high and death rate is also high, and the result is growth rate of the population is low. अब किसी भी सोसाइटी में जब बर्थ रेट भी हाई होता है और डेथ रेट भी हाई होता है तो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हमेशा लो होती है, क्योंकि जितने व्यक्ति जन्म ले रहे हैं उसी के लगभग व्यक्ति मर रहे हैं, तो ग्रोथ रेट अपने आप ही लो रहेगी, क्योंकि फिर जनसंख्या वृद्धि नहीं होती, क्योंकि दोनों इक्वल हो जाते हैं, है ना। तो इसके पीछे क्या रीजंस हैं वो हम देखते हैं. पीपल मोस्टली लिव इन रूरल एरियाज एंड देयर main occupation is agriculture. Second is absence of effective medical aid. Third is illiteracy. Fourth is absence of knowledge about family planning techniques. And fifth is early age of marriage. So in this first stage, the society was primitive and the economy was agrarian. Agrarian means agriculture based society. And the birth rate was high due to agriculture occupation, because agriculture occupation need more manpower, and in the primitive society there is no developed technique or machinery for the agriculture. And illiteracy, people were not aware about the education of their children, and वो खुद ही illiterate थे. And they have no knowledge about the family planning techniques. And the early age of marriage is the another factor of high birth rate, because उस टाइम पे इस स्टेज में अर्ली एज में मैरिज हो जाया करती थी. जो मैरिज के लिए जो एज थी वो फिक्स नहीं थी और बाल विवाह हुआ करते थे. और फर्टिलिटी रेट आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि 15 to 45 की एज जो फर्टिलिटी एज होती है, तो उसमें अब आप देख लीजिए कि बर्थ रेट इसके अकॉर्डिंगली काफी हाई था इस स्टेज में. डेथ रेट इज ऑल्सो हाई ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ मेडिकल एड और नेचुरल क्लेमिटी लाइक फ्लड, ड्रॉट और एनी एपिडेमिक. क्योंकि उस टाइम पे जो मनुष्य थे उनका नेचुरल क्लेमिटीज जो थी उन पे कोई कंट्रोल नहीं था. कंट्रोल तो खैर आज भी नहीं है, लेकिन आज हमें फोरकास्ट मिल जाता है जिससे कि हम उसके लिए पहले से प्रिपेयर हो जाते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था. इसलिए जो डेथ रेट था उस फर्स्ट स्टेज में वो काफी ज्यादा था. सेकेंड स्टेज, इट इज कॉल्ड द स्टेज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. In this stage, the death rate is decreasing while birth rate remains constant at high level. In the second stage is called population explosion, यानी कि इसको जनसंख्या विस्फोट का जो काल है या फिर स्टेज को कहा गया.
इन दिस स्टेज द डेथ रेट क्या हो रहा था यहाँ पे, डिक्रीज हो रहा था, कम हो रहा था। वाइल द बर्थ रेट रिमेन्स कांस्टेंट हाई लेवल, बर्थ रेट वहीं उसी स्टेज पे था, हाई लेवल पे था फर्स्ट स्टेज की तरह, लेकिन बर्थ रेट जो डेथ रेट था वो डिक्रीज हो रहा था। क्यों हो रहा था डेथ लेवल डिक्रीजिंग, क्यों हो रहा था? क्योंकि एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन डेवलप्स, education expands, income also increase, people get more and better quality of food products, मेडिकल एंड हेल्थ फैसिलिटीज आर एक्सपेंडेड। जो डेथ रेट है वो डिक्रीज इसलिए हो रहा था क्योंकि सारी फैसिलिटीज जो थी उस टाइम पे सोसाइटी में बढ़ती जा रही थी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, एग्रीकल्चर के में काफी डेवलपमेंट हो गया था, जो मेडिकल और हेल्थ फैसिलिटीज थी वो भी डेवलप्ड हो चुकी थी, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन ये सब भी डेवलप्ड हो गए थे, और लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड था वो काफी डेवलप्ड हो चुका था उस टाइम पे। बट जो बर्थ रेट था वो अभी भी अपने उसी हाई लेवल पे था। वो क्यों था? डू नॉट मेक एनी एफर्ट्स टू कंट्रोल द साइज ऑफ फैमिली बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ रिलीजियस डॉगमेस एंड सोशल टेबूज टुवर्ड फैमिली प्लानिंग। अब इस सेकेंड स्टेज में जो बर्थ रेट हमारा अभी भी हाई लेवल पे था, वो क्यों था? वो इसलिए था कि जैसे आप इंडियन सोसाइटी जो है हमारी, उसकी पर्सपेक्टिव में आप देख सकते हो कि जो हमारा रिलीजन है उसमें और जो हमारे जो कल्चर है उसमें ये जो बेटा होता है उसको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। मतलब ये कहा जाता है जो हमारी संस्कार जो होते हैं, कुछ ऐसे संस्कार होते हैं जिनको बेटा ही पूरा करता है, या फिर कहते हैं कि भाई बेटा जो है वो वंश को आगे बढ़ाता है, या अंतिम संस्कार की जो क्रिया है वो भी लड़के के द्वारा ही की जाती है। तो इसलिए कभी कभी किसी आपने देखा होगा सोसाइटी में कि कहीं कहीं किसी परिवार में जो गर्ल्स होती है, गर्ल चाइल्ड होते हैं, वो काफी सारे होते हैं कि कभी कभी किसी फैमिली में 4 गर्ल्स या 5 गर्ल्स भी होती हैं, लेकिन फिर भी वो ट्राई करते हैं बॉय के लिए। तो ये भी एक बर्थ रेट को इंक्रीज करने का एक रीजन ये भी है। एंड इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक विद द पास्ट सोशल इंस्टीट्यूशन कस्टम एंड बिलीव्स। और इन ये जो हमारे कस्टम और बिलीव्स हैं इनको तोड़ना भी मतलब बहुत कठिन है। हमारी जैसी जो इंडियन सोसाइटी है उसके लिए बड़ा कठिन है। एज अ रिजल्ट ऑफ दीज फैक्टर द बर्थ रेट रिमेन्स एट द प्रीवियस हाई लेवल। और इन सब कारणों की वजह से ही जो बर्थ रेट था वो भी अभी भी हमारा हाई लेवल पे था इस सेकेंड स्टेज में। थर्ड स्टेज, इन दिस थर्ड स्टेज द फर्टिलिटी रेट डिक्लाइंस एंड टेंड्स टू इक्वल द डेथ रेट, सो द डेथ रेट ऑफ पॉपुलेशन डिक्लाइंस। इट इज कॉल्ड द स्टेज ऑफ स्टेशनरी पॉपुलेशन। इस स्टेज में वॉरेन थॉमसन ने कहा है कि जो हमारा बर्थ रेट था वो भी डिक्लाइन हो गया और जो हमारा डेथ रेट था वो भी डिक्लाइन हो गया। तो जो हमारी ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन थी वो स्टेबल हो गई, है ना। वो एक स्टेशनरी स्टेज में आ गई, जो पॉपुलेशन थी वो स्टेबल हो गई, है ना। लेकिन अगर हम इसको इंडियन पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो हमारे जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है अभी वो इस थर्ड स्टेज में नहीं आई है, वो सेकंड स्टेज में ही है। क्योंकि जो हमारी बर्थ रेट है वो भी हाई है, वो लो नहीं हुआ है, और हमारा जो डेथ रेट है वो लो है, और जो हमारी जो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है वो भी हाई है। तो इंडिया में इसको हम ये नहीं कह सकते कि हमारा इंडिया थर्ड स्टेज में आ गया है। देखिए ट्रांजिशन थ्योरी का डायग्राम है, इसके थ्रू आप ट्रांजिशन थ्योरी को इजीली समझ सकते हैं। हमारे पास 3 स्टेज थी इस थ्योरी में, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। फर्स्ट स्टेज में क्या था, ये जो रेड वाला है ये बर्थ रेट है और ये ब्लू डेथ रेट है। बर्थ रेट और डेथ रेट फर्स्ट स्टेज में हाई थे, और सेकंड स्टेज में बर्थ रेट तो हाई रही लेकिन जो डेथ रेट थी वो डिक्लाइन होने लगी थी। क्यों? क्योंकि जो मेडिकल फैसिलिटी थी वो इम्प्रूव हो गई थी, लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव हो गए थे, उनकी इनकम इम्प्रूव हो गई थी, और एजुकेशन सिस्टम था वो भी इम्प्रूव हो रहा था, और जो पॉवर्टी थी वो कम हो रही थी, और लोगों के पास फैसिलिटीज बढ़ रही थी। इसलिए जो बर्थ रेट था वो तो हाई था, क्योंकि पहले इसके मुकाबले अब तो फैसिलिटीज उनके पास ज्यादा थी, तो बर्थ रेट तो जो था वो हाई रहा, लेकिन डेथ रेट धीरे धीरे कम होने लगा। हेल्थ और हाइजीन का लोग ध्यान रखने लगे, तो धीरे धीरे जो बर्थ रेट था वो कम होने लगा। लेकिन
जो थर्ड स्टेज में आते आते लोग इस बारे में अवेयर हो गए कि बर्थ रेट जो है, हमारी जनसंख्या जो वृद्धि हो रही है इतनी ज्यादा, वो कम होनी चाहिए। और इसमें बहुत बड़ा हाथ वुमेन एम्पावरमेंट का भी है, क्योंकि जब जो महिलाएं हैं वो घर से बाहर निकली और उन्होंने बाहर जॉब करना शुरू किया, तो उन्हें भी लगने लगा कि भाई वो इतने सारे बच्चों को संभाल के घर का और बाहर का वर्क एक साथ नहीं कर सकती। इसलिए उन्होंने भी बर्थ कंट्रोल के बारे में सोचा। एजुकेशन इतनी महंगी हो गई कि अब 2 बच्चों से ज्यादा वो लोग बियर नहीं कर सकते थे कि भाई एजुकेशन सिस्टम में जब बियर नहीं कर सकते थे। सो आई थिंक थ्रू दिस डायग्राम यू कैन अंडरस्टैंड दिस थ्योरी, है ना। और आप इसको एग्जाम में भी आप इसके डायग्राम के थ्रू इस थ्योरी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। बस नाउ वी डिस्कस द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ दिस थ्योरी। The positive aspects are most acceptable, number 2 easy to understand, number 3 based on actual population data of Europe and other developed countries, and number 4 helps the planning process. The negative aspects are number 1 non-availability of data means difficulty in preparation of the graph. Second is difficult to get uniform pattern for all countries. जो इस थ्योरी की कमी है वो सिर्फ यही है कि अगर आपके पास डेटा अवेलेबल नहीं है तो ग्राफ बनाने में डिफिकल्टी आ सकती है। डेथ और बर्थ रेट का आपको एक्चुअल रेट्स नहीं पता चलेंगे। सेकंड, डिफिकल्ट टू गेट यूनिफॉर्म पैटर्न फॉर ऑल कंट्रीज, और आप इसको एक यूनिफॉर्म पैटर्न की तरफ हर कंट्री में फिट नहीं कर सकते। जैसे कि हम इसको अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखें तो ये हमारा जो इंडिया है वो अभी थर्ड स्टेज में नहीं आया, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ये थ्योरी फिट नहीं बैठ सकती है। नाउ कंक्लूजन, द थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक transition is the most acceptable theory of population growth. Almost all the European countries of the world have passed through the first 2 stages of this theory and are now in the final stage. और हम कह सकते हैं कि जो डेमोग्राफिक थ्योरी है वो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल थ्योरीज में से है, और जो जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं वो लगभग इसकी दोनों स्टेजेस उन्होंने पास कर ली हैं और वो अपनी थर्ड स्टेज में आ चुके हैं। अब डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं यूरोप के, लेकिन ये इंडिया के पर्सपेक्टिव में फिट ये थ्योरी नहीं बैठती है, क्योंकि हमारा इंडिया की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है अभी हाई है। सो द स्टूडेंट्स दिस लेक्चर इज स्टूडेंट्स टुडेज लेक्चर इज ओवर नाउ। जय हिंद, बाय बाय। So students, today's lecture is over now. Jai Hind, bye bye.